पृथ्वी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋर्ट। मैं कमरदीप सिंह गिल पंजाबी अध्यापक धून सीनियर सैकेंडरी स्कूल कराड़वाला जो कि पिछले 15 साल तो अध्यापक किते नाल जुड़े हुए हैं। टाइम के नाल सिक्ख्या भी जिहड़ी है वो चेंज होंदी रहिंदी है और समा बदलता रहिंदा ते नवीं तकनीकां जिहड़ियां याद हो जांदियां और एजुकेशन सिस्टम भी है जिहड़ा वो भी सानूं नाल समय दे चलना पैंदा। नवीं सिक्ख्या प्रणाली तकरीबन 30 साल बाद नवीं चेंज आई है साडे कोल ते ये बहुत जरूरी है। मैं कहना कि बहुत वधिया गल है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਸਤਾ ਹਲਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵਧੀਆ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸਰਚ ਕੋਰਸ ਜਾਣਾ BA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ PhD ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਗੈਰਾ ਆਰਟ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਲਚਕੀਲਾਪਣ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੈਚ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾਬੈਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨੌਲੇਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਅਸੀਂ IT ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਕੋਰਸ ਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਕੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਹ MA ਜਿਹੜਾ 1 ਸਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਊਗਾ। MPhil ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆ ਰਿਸਰਚ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਚੂਗਾ। जहाँ तक ये नवी शिक्षा जो नीति आई है इसके बारे में बात करनी है तो ये है कि एक क्रांतिकारी कदम होगा हमारे देश के लिए। हमारी सरकार ने जो शिक्षा नीति पहले चल रही थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी और समय पे जो कि हर 10 साल बाद रिव्यू होनी चाहिए नहीं हो रही थी, उसे अब चेंज करने का जो पास किया है उसके मुताबिक जो है ये शिक्षा नीति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही योगदान देने वाली साबित होगी। और ख़ास तौर से इसमें क्या होगा कि जो पहले बच्चे थे एजुकेशन लेते थे, डिग्री लेते थे, तो उस डिग्री का कोई महत्व नहीं रह जाता था। उसके अलावा उन्हें अपने एक सिंपल जॉब लेने के वास्ते भी तैयारी करनी पड़ती थी और टेस्ट देने पड़ते थे और स्किल तो कहीं पे नज़र ही नहीं आता था। अच्छा एक डिग्री होल्डर भी एक सिंपल जॉब वास्ते, क्लर्क की जॉब वास्ते भी काम नहीं कर सकता था। उसका योगदान, उसकी एजुकेशन का योगदान देश को प्राप्त नहीं होता था। ये शिक्षा नीति जो है इस सब में जो काम करेगी, हर बच्चा जो किसी भी लेवल तक पढ़ेगा, चाहे वो बीच में अपनी एजुकेशन छोड़ता है तो भी उसके पास एक ऐसा सर्टिफिकेट कागज़ होगा कि वो अपनी योग्यता साबित कर सकता है और उसके मुताबिक जो भी ले सकता है अपने काम से जो है देश के काम आ सकता है। इसमें ख़ास तौर से एक जो विज्ञान और गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, एजुकेशन जो है वो एक उद्देश्य को लेकर होगी, ऐसी योजना जो बनाई गई है। इसमें ग्रेडेशन होगा जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं उनका। इसमें टीचर्स के वास्ते भी रखा है कि उन्हें जो गैर शैक्षणिक कार्य है उनसे हटा के सिर्फ शिक्षा के काम पर रखा जाएगा। शोध करने वाले बच्चे को एक टारगेट होगा कि वो शोध कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कोई MSc फिजिक्स करना चाहता है, फिजिक्स में कोई डिग्री खास लेना चाहता है, उसको MSc के साथ में मैथ और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता था पहले, अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर उसे फिजिक्स पढ़नी है तो साथ में म्यूजिक पढ़ सकता है, हल्का सब्जेक्ट अपनी मनपसंद सब्जेक्ट लेके भी अपनी पढ़ाई कर सकता है। इसमें एक जो नेशनल नीति बनेगी, एक और भी देखने को आया कि जो लैंग्वेज
इसमें 3 भाषा का एक फार्मूला होगा। स्टेट लैंग्वेज इग्नोर नहीं होगी। जैसे अभी बहुत सारे बोर्ड, अलग अलग बोर्ड बने हुए थे और उन बोर्ड के मुताबिक जो है हमारा डिफरेंस था, स्टेट वाइज डिफरेंस था, लेकिन ये देश को एक कर देगी। 3 भाषाओं की जो पद्धति रहेगी उसमें स्टेट जो लैंग्वेज है वो भी प्रभावित नहीं होगी। यहाँ तक कि यह है इसमें जो RTE है उसे भी बढ़ा के 8वीं से लेकर 12वीं तक किया जाएगा। ये सब कुछ हमारे देश की शिक्षा को बहुत आगे ले जाने के लिए सहायक होगा। हमारा जो युवा आज बेरोजगार घूम रहा है, बहुत बड़ी बेरोजगारी नज़र आ रही है, वो सब कंट्रोल होगी। हम सब अपने देश के वास्ते काम करेंगे, ऐसे शिक्षा नीति से होगा। इसमें एक ख़ास बात ये है कि जो छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को हमेशा उसकी जो मदर लैंग्वेज है, उसकी जो मदर टंग है, मातृभाषा है, उसमें ही बेहतर से पढ़ाया जा सकता है। इस शिक्षा नीति में तो यहाँ तक भी रखा है कि जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी और स्कूलों के माध्यम से शिक्षा होगी। छोटे बच्चे की जो शिक्षा का माध्यम है वो हमेशा उसकी अपनी भाषा होनी चाहिए, जिससे कि बच्चा जो है उसे जल्दी समझता है। दूसरी भाषाएं फिर बड़ी क्लासों में आ सकती हैं। यहाँ तक कि जो विदेशी भाषाएं हैं उनका जो उन्हें भी सिखाया जा सकता है, वो बड़ी क्लासों में सिखाया जा सकता है। ज़रूरी है कि प्राइमरी लेवल पे जो उसकी अपनी मातृभाषा है उसका इस्तेमाल हो। जहाँ तक इंग्लिश की बात है, इंग्लिश का ट्रेंड हमने एक ज़रूरत से ज़्यादा बना दिया है। एक भाषा संपर्क की भाषा है, क्योंकि आज जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सारी दुनिया एक देश के या गांव के रूप में देखी जा रही है। तो ठीक है, उसमें हम अपनी बातचीत के लिए कुछ भाषाओं का इस्तेमाल करेंगे, करना भी चाहिए। उसमें इंग्लिश को जो है ऐसा हमने महत्व दे दिया कि ये ज़रूरत से ज़्यादा है, उसे ट्रेडिशन दे दिया। बहुत सारे देश हैं जिन्होंने अपनी भाषा में, जैसे चाइना है, जापान है, वो अपनी भाषा में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और उनके बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो इंग्लिश का हवा हमें दूर कर देना चाहिए। हमें अपनी भाषाओं पर पूरा ध्यान दे के और उनका इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। हाँ, मेरा नाम सुनील मलिक है और मैं सरकारी विद्या मंदिर रामपुरा फूल में अपने बतौर प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा हूँ। और इस शिक्षा नीति से काफ़ी उम्मीद करता हूँ और कि हमारी सरकार जैसे अच्छी तरह लागू करेगी और हम सब मिलकर अपने देश के लिए काम करेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में एक अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद।